नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 4 यूनिट, 4 यूनिट से, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई क्वेश्चन आउट ऑफ वे भी आ गया तो भी आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे इस सेशन के बाद। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग? लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, डिस्कशन मेथड है या डिक्टेशन मेथड है? मोस्ट यूजफुल इज डिस्कशन मेथड। अच्छा, इस सेशन में एक बात बता दूं कि हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो आपका। अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है रिवीजन का, तो इस टाइम में जस्ट 50 क्वेश्चन विद इन 10 to 15 मिनट्स सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज योर टॉपिक्स। आंसर है डिस्कशन मेथड। एक्सप्लेनेशन इसका क्या रहेगा? डिस्कशन प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज? टीचिंग का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। क्या रहने वाला? फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, की स्टूडेंट को लर्निंग तक पहुंचाना, लर्निंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ना कि कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। एक्सप्लेनेशन, मॉडर्न टीचिंग फोकसेस ऑन अनेबलिंग स्टूडेंट्स टू लर्न इफेक्टिवली, ना कि जस्ट सिलेबस को कंप्लीट करवाना। नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसर्न्ड विद मेमोरी एंड रिकॉल? ऑप्शन, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल एंड ऑटोनोमस लेवल। सो आंसर वुड बी मेमोरी लेवल। ठीक। Explanation, memory level teaches, emphasizes rote learning and recall of facts. Next, micro teaching is mainly used for evaluating students, developing teaching skills, conducting research या curriculum design. Answer would be option number B, developing teaching skills. Explanation, micro teaching helps teachers practice specific skills in a controlled environment. ठीक। And fifth number, formative evaluation is conducted before instruction, during instruction, after instruction, at the end of the academic year. So answer is during instruction. Before और after आप comment section में बताएं। after बता देता हूं, summative को बोलते हैं after instruction। ठीक। Explanation, formative evaluation provides continuous feedback for improvement during the session. Which of the following is not a characteristics of effective teaching? Effective teaching की एक विशेषता क्या नहीं है? Clarity of presentation, student participation, one way communication, only motivation of learners। एक बात का ध्यान रखना, जहां पे only आपको दिखाई दे जाए मोस्टली चांसेस रहते हैं वो रॉन्ग होता है। ठीक है, सो वन वे कम्युनिकेशन is not useful, two-way communication होना चाहिए between students and teacher. So option number C would be the right answer. Explanation, effective teaching involves interaction between teacher and students. Next, Bloom's taxonomy is related to classroom management, educational objective, educational technology या curriculum planning. Option number B is the right answer. Explanation, Bloom classified learning objective into cognitive, affective and psychomotor domain. Next, eight. The highest level in cognitive domain of Bloom's revised taxonomy is analysis, evaluation, application or creating. Option number D is the right answer, creating. ठीक। Explanation, in the revised taxonomy, creating is placed above evaluation. Diagnostic evaluation is used to grade students के लिए, identify learning difficulties के लिए, award scholarship के लिए या promote students के लिए। Option number B is the right answer, identify learning difficulties of a student.
Explanation diagnostic test help locate weakness and learning gaps. In learner-centered teaching, the teachers act primarily as dictator, controller, facilitator और inspector. Option number C is the right answer as facilitator. ठीक, explanation आप go through हो सकते हैं. Question number 11. When the child is suffering from reverse impaired ability to read, then this type of disability is known as रीड की होती है, हियर की होती है, राइटिंग की होती है. यहां पे पूछा हुआ रीड के लिए डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया, डिसकैल्कुया और सेरिब्रल पैल्सी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक, डिसलैक्सिया. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन शुड बी डन बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से पहले कौन सा इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है? प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक. देखो, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द सेशन होता है, समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, प्लेसमेंट बिफोर द सेशन होता है, बिफोर द इंस्ट्रक्शन होता है, डायग्नोस्टिक आप कमेंट में बताएं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इन्वॉल्व सब्जेक्ट लर्निंग थ्रू द ड्रामेटाइजेशन ऑफ लिटरेरी और हिस्टोरिकल. ऑप्शन नंबर ए सेमिनार, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैनल डिस्कशन और रोल प्ले. आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, रोल प्ले. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्रमोट्स लाइफ स्किल ट्रेनिंग अमंग यंग पीपल. समग्र शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्वयं प्रभा या अडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ minimizing indiscipline problems in the classroom, attracting students' attention in the classroom, effective engagement of the students in learning tasks, optimizing learning outcomes of students. So option number D is the right answer. Next, in which teaching method learners participation is made optimal and proactive? Discussion method में, बूझ सेशन में, प्रोजेक्ट या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड में? प्रोजेक्ट मेथड में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का पार्टिसिपेशन 100% रहता है. ठीक. नेक्स्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड के, टीचिंग एप्टीट्यूड के 18 क्वेश्चन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड के. रिसर्च इज प्राइमरीली अ प्रोसेस ऑफ गेसिंग द फैक्ट्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल ओपिनियन या डाटा कलेक्शन ओनली. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. ठीक. आप एक्सप्लेनेशन गो थ्रू हो सकते हैं. नेक्स्ट, हाइपोथेसिस इज, ये इजी लग रहे होंगे आपको, बट यहीं पे बच्चे मार खाते हैं. ठीक है, जो हार्ड लेवल के करके और इजी लेवल को स्किप कर देते हैं. बट यहाँ पे मैंने इस हिसाब से डिजाइन किए हुए कि हर एक सेशन का पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्टी लेवल तक आपको लेके गया हुआ हूँ. सो हाइपोथेसिस क्या होता है? प्रूवन फैक्ट होते हैं या टेंटेटिव प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड और कंक्लूजन ऑफ रिसर्च या स्टेटिस्टिकल टूल. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए टेंटेटिव प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड. Explanation, hypothesis is an assumption that can be tested through research. Next, which of the following is a characteristic of good research? Bias, subjectivity, systematic approach, personal belief. So option number C is the right answer, systematic approach. Next, the research which aims at finding solutions to immediate problem is called. यहाँ के पे क्या पूछा? इमीडिएट प्रॉब्लम पूछा. बेसिक रिसर्च, अप्लाइड, हिस्टोरिकल और फंडामेंटल. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अप्लाइड रिसर्च. कई बार डाउट होता है अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च के बीच में. ठीक, या तो एक्शन रिसर्च के बीच में. ठीक. नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन आप गो थ्रू हो सकते हैं. नेक्स्ट, प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, टेकन फ्रॉम बुक्स, taken from journals. So option number B is the right answer, collected from the first time. Which of the following is a method of collecting primary data? Census report, government publication, observation and textbook. So observation is the right answer because बाकी सभी already पब्लिक हो चुके हैं या तो सेकेंडरी डाटा सभी के सभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट है सैम्पलिंग मीन्स
studying the whole population, selecting a representative portion of population, ignoring population characteristics या collecting secondary data. So option number B is the right answer, selecting a representative portion of population. Next, the main purpose of a literature review is entertainment, avoid data collection, understand existing knowledge and identify gaps, increase sample size. So option number C is the right answer. Next, action research is mainly conducted by politicians, classroom teachers, businessmen or industrialists. So option number B is the right answer. Action research is used to solve immediate classroom or institutional problems. ठीक. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में डाउट देखने को मिल सकता है, इसका आप ध्यान से पढ़ के जाएं. नेक्स्ट, रिसर्च एथिक्स प्राइमरली एम्फेसाइजेस मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट, प्लेगरिज्म, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, पर्सनल बिलीफ. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. Next, which scale of measurement possesses an absolute zero? Nominal scale, ordinal scale, interval or ratio scale? Option number D is the right answer, ratio scale. Next, communication से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन. कब इफेक्टिव होता है कम्युनिकेशन? द सेंडर स्पीक्स फ्लुएंटली, the receiver understands the message as intended, the message is lengthy, the receiver remains silent. Option number B is the right answer. Next, which of the following is not a barrier to communication? communication के लिए कौन सा एक बैरियर नहीं है? semantic distortion, psychological bias, feedback और information overload. feedback एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, न कि नेगेटिव पॉइंट होता है. नेक्स्ट, in Berlow's SMCR model, C stands for context, channel, communication or code. So option number B is the right answer, means channel. SMCR means source, message, channel and receiver. Next, when a receiver interprets a message based on personal beliefs and experiences, the barrier is called physical barrier, mechanical barrier, psychological barrier or linguistic barrier. Option number C is the right answer. Next, which communication pattern is considered most democratic in classroom interaction? Wheel network, chain network, circular network or all channel network? Option number D is the right answer. Next, non-verbal communication includes official reports, emails, facial expression and gestures, circulars. Option number C is the right answer. Next, the major purpose of feedback in communication is to increase message length, verify message understanding, reduce communication speed या change the sender. Option number B is the right answer. Next, which of the following is an example of upward communication? Principal issuing instructions to teachers, teachers submitting report to principal, government notifying universities, teacher teaching students. So option number B is the right answer. यदि आपको सेशन में मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दो, कमेंट करना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट जो सेशन है अनदर 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स के, हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, वो भी लाइव. यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली लाइव लेके आएंगे आज शाम को ही या तो कल आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए. यूनिट नंबर 1 मींस पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद. कम्युनिकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? फीडबैक से, एनकोडिंग से, डिकोडिंग से या चैनल सिलेक्शन से? स्टार्ट होता है एनकोडिंग से. ठीक है, पहले एनकोडिंग किया जाता है, उसके बाद डिकोडिंग होगा. ठीक है. नेक्स्ट, द सेंडर फर्स्ट एनकोड द मैसेज बिफोर ट्रांसमिटिंग इट. A teacher notices students are confused despite repeated explanation. The most appropriate communication strategy is increase speaking speed, repeat the same explanation loudly,
seek feedback and modify the message, ignore the students reactions. So option number C is the right answer. Next, most important 12 questions of ICT, information and communication technology. Which of the following is not an operating system? Windows 11, Linux, Oracle or macOS? So option number C is the right answer. बाकी सब operating system है. Next, what is the full form of URL? आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिट्राइवल लोकेटर, यूनिवर्सल रिट्राइवल लिंक. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल? किस टोपोलॉजी में लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल यूज होती है? स्टार में, रिंग में, बस में या मैच में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बस टोपोलॉजी के अंदर. ठीक. नेक्स्ट, which of the following is an example of system operating software? MS Word, Google Chrome, Windows operating system, PowerPoint. Option number C is the right answer, Windows operating system. Next, the term phishing refers to, बहुत ही यूजफुल, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये. इसका ऑप्शन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस थ्रू डिसेप्टिव मैसेजेस, डाटा कंप्रेशन या वायरस स्कैनिंग. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which protocol is primarily used for transferring web pages on the internet? FTP, SMTP, HTTP, POP3. So option number C is the right answer. Next, which memory is volatile in nature? volatile का आपको पता होना चाहिए क्या होता है. टेम्परेरी. रोम, हार्डवेयर, SSD या रैम? रैम इज द volatile memory. So option number D is the right answer. Next, what does WWW stands for? World Wide Web, World Web Window, Web World Wide, Wide World Web. Option number A is the right answer. यदि आपने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक जरूर कर दें. चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो टाइमली आप तक पहुंच जाए. और यदि दम लग रहा है सेशन में, आपका रिवीजन अच्छे ढंग से हो रहा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना. और कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस? ड्रॉपबॉक्स, लिनक्स, ओरेकल, एसक्यूएल या जावा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, स्पीड में इसलिए करा रहा हूं ताकि टाइम आपका सेव हो जाए और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आप कर पाए. क्वेश्चन नंबर 10, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग अ डिवाइस दैट forwards data packets between networks is called hub, switch, router या repeater? Option number C is the right answer, router. Next, which layer of the OSI model is responsible for end-to-end communication and error-free delivery of data? Network layer, data link layer, transport layer या session layer? Option number C is the right answer, transport layer. And the last question for this session is, but most important, which of the following is not a characteristics of cloud computing? One demand, self service, resource pooling. इन्होंने क्या पूछा? नोट. इस नोट का बड़ा ध्यान रखना. बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको इजी लगेंगे, आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने की कोशिश करेंगे हड़बड़ाहट में कि ये मुझे आता है, और इसमें आप गलती कर बैठते हैं. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्योंकि वो इस एक्साइटमेंट में होते हैं, ये तो क्वेश्चन आता है उसको, बट वो नोट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. हर 5 से 10 क्वेश्चन इजी होते हुए भी आप गलत कर आते हैं, और जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है. एक एक क्वेश्चन के ऊपर आप कट ऑफ से के मार्जिन से रह जाते हैं या कट ऑफ के मार्जिन से ऊपर जा करके आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं. सो एक एक क्वेश्चन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है. Fixed hardware dependency for every user, rapid elasticity. So option number C is the right answer, fixed hardware dependency for every user. इसका एक्सप्लेनेशन है. सो दोस्तों, यदि आपको सेशन में मजा आ गया हो तो आप एक बार अगेन बोल रहा हूं कि लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि नेक्स्ट सेशन लेके आऊं, मजा आए, मुझे मजा आए, आपको भी मजा आए सेशन को देखने में. सो थैंक यू
वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।